Uzair, can you contact Dr. Ali Hyder? He is just joining. Okay, fine. It's about time. I think we will wait for 1 or 2 minutes. As soon as Dr. Ali Hyder will join, I will start. Sure, please. Dr. Ali Hyder has joined, Kiran. I think you should start now. Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I am the Director Operations at Parsa Echo Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to the Echo session in series of Digestive Disease Echo. It's in collaboration with Rising Foundation, and we are thankful for Gets Pharma for the unrestricted educational grant. Today's session is titled H. pylori Treatment and Diagnosis, and our expert for today's session is Dr. Ali Hyder Baloch. Before I introduce to our expert for today's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for questions and use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording, and the recorded session will be available on our YouTube channel, and link will be shared in the chat box. For CME credits, please contact Uzair. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 12 hours. You are requested to fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of spokes, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. Our expert for today is Dr. Ali Hyder Baloch, is Head of Gastroenterology Hepatology Department, Associate Professor of Gastroenterology, Chandka Medical College in Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto Medical University, Larkano, Sindh, Pakistan. He has special interest in liver biopsy, diagnostic, therapeutic UGI endoscopy, diagnostic and therapeutic LGI, and therapeutic ERCP. He has many international and national publications in his name. I will now hand over to Dr. Ali Hyder. Dr. Ali Hyder. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Dr. Ali. Thank you for joining us, and we can hear you very well. Please. Thank you for kind introduction. So just help me to share my screen. जस्ट मुझे ये बता सकते हैं कि शेयर कैसे करना है जो
प्रेजेंटेशन है। जी डॉक्टर अली, आपने जो प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट की वो अभी ओपन की हुई है? नहीं, ओपन नहीं की हुई है। ओपन करूं? जी, आप उसको ओपन करके मिनिमाइज करें जरा जी, उसको ओपन करके ना मिनिमाइज जी कर कर दें। दिया। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, बॉटम पे एक ग्रीन कलर का आ रहा होगा, शेयर स्क्रीन। जूम में? जी, जूम में आप शेयर स्क्रीन को क्लिक करें जरा। जी, वी अब कैन सी योर स्क्रीन नाउ। जी, प्लीज गो अहेड। जी, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाह। Thank you so much, Parsa EcoTrust, me in adults. और थैंक यू सो मच ऑफ पार्टिसिपेंट्स कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के इस टॉक के लिए वो अवेलेबल हैं। हम स्टार्ट करते हैं फॉर एच पाइलोरी के इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजी, देन एपिडेमियोलॉजी, देन फर्दर पैथोफिजियोलॉजी, and later on diagnosis and treatment. So bacteriology में round about 100 years पहले जो है ये गैस्ट्रिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया गया था, और गैस्ट्रिक ऑर्गेनिजम्स एंड गैस्ट्राइटिस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो 1972 में इस्टेब्लिश हुआ। मार्शल एंड वॉरेन ने जो है वो एच पाइलोरी को डिस्कवर किया एंड रिक्लासिफाई किया as a Helicobacter pylori in 1982, or then it has been found as a causative agent for gastroduodenal diseases. अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को देखें तो इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं और बायोकेमिकल कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये गैस्ट्रोड्यूडेनल डिजीजेस कराता है। Among morphological characters, it's spiral shape or usually spiral rod shaped, but जब PPI थेरापी, एंटीबायोटिक थेरापी हो तो ये कोकोइड फॉर्म भी हासिल कर, जो इसकी मोबिलिटी के लिए टुवर्ड्स एपिथेलियम हेल्प करते हैं। केमिकल कैरेक्टर्स हैं, उसमें इंपॉर्टेंट जो है एंजाइम्स हैं, जिसमें एक एंजाइम है यूरिएज। ये यूरिएज कैटलेज एंजाइम्स जो इनकी अटैचमेंट और इसको गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए और लेटर ऑन इनकी जो प्रॉब्लम्स गैस्ट्रोड्यूडेनल डिजीजेस कराता है उनमें के लिए हेल्प करता है कि दे प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स, एक्टिवेट द इन्फ्लेमेटरी cytokines and damages epithelium. So chemical characters and morphological characters of जो है ना H pylori that leads to its development of gastroduodenal problems. H pylori is the most common chronic bacterial infections in humans worldwide, or all ages are affected. Mostly around about more than 50% population जो है वो affected है। डेवलप कंट्रीज में किड्स जो हैं वो अर्लियर इन्फेक्शन उनमें हो जाता है। प्रीवलेंस रिजर्वायर ह्यूमंस हैं, housing dynasty, crowded conditions, or a lack of purified water जो है वो that are the reasons of high prevalence in developing countries. Transmission route mostly person to person through gastro-oral route, fecal-oral route, or oral route के through
होता है और कंटामिनेटेड वाटर डेवलपिंग कंट्रीज में। इसके अलावा जो हाइड्रोजेनिक इक्विपमेंट्स, हाइड्रोजेनिकली इक्विपमेंट्स जो हैं लाइक एंडोस्कोप, इन्फेक्टेड एंडोस्कोप या इम्प्रॉपरली स्टरलाइज्ड डिवाइसेस जो स्टमक में यूज होते हैं, उनके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। Infected gastric contents that contain higher amount of bacteria as well. So वो infected gastric contents की transmission से भी ये bacteria from person to person transmit हो जाता है। Reinfection after cure that is unusual in adults, less than 2% of persons per year, but reinfection in kids वो ज्यादा है। Adults में क्योर के बाद जो दोबारा इन्फेक्शन अराइज हो रहा है, that is mostly the due to mutations of the original organism strain. So H. pylori, due to its morphological and biochemical properties, it's highly adapted to gastric environment. Gastric environment is a highly acidic environment. Despite that, it lives there. और इनकी जो यूजुअल साइट ऑफ प्रेजेंस है गैस्ट्रिक म्यूकस लेयर है, उस गैस्ट्रिक म्यूकस लेयर में ये रहता है और उसके बाद ये टाइटली खुद को अटैच करता है टू द एपिथेलियम। सो इट्स बेसिकली नॉट इन्वेसिव ऑर्गेनिज्म बट अटैचेस टू एपिथेलियम एंड लेटर ऑन leads mucosa vulnerable to damage by the acidity, by the enzymes, toxins, and host immune response, leading to the inflammatory reactions. So problem jo after colonization of bacteria, attachment of bacteria to epithelium, that leads to the production of the virulence effect products and leading to host immune response and inflammatory problems that lead to the development of the conditions like in this figure. You see that this epithelium then causes production. These factors cause damage to the epithelium that leads to the gastroduodenal ulcers, gastritis, erosions, gastric ulcer, gastric duodenal ulcer, and malignancy as well. अगर हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन पे लुक करें तो जब आफ्टर एक्यूजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, acquiring organism, acute infection, acute gastritis, यूजुअली H. pylori की वजह से वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। और 100 जो भी एक्यूट इन्फेक्शन के बाद जो भी केसेस हैं 100% वो सारे के सारे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में विद पैसेज ऑफ टाइम कन्वर्ट हो जाते हैं। आफ्टर क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, उसी से ड्यूडिनल अल्सर भी डेवलप हो सकते हैं, उसी से गैस्ट्रिक अल्सर भी डेवलप हो सकते हैं with passage of time, उसी से म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोमा भी डेवलप हो सकता है और उसी से गैस्ट्रिक कैंसर भी डेवलप हो सकता है। और ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस फॉर इयर्स लाइफ लॉन्ग एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है। So acute gastritis, chronic gastritis leading to duodenal ulcer, gastric ulcer, marked lymphoma, and gastric cancer, and as well as metaplasia. So these are the intestinal gastric conditions which arise usually जो antral predominant gastritis है उसी से duodenal ulcer develop होते हैं, जो pain gastritis या body predominant gastritis है उसी से gastric ulcer डेवलप होता है, उसी से जो है मेटाप्लेजिया डेवलप होता है, उसी से गैस्ट्रिक कैंसर भी डेवलप होता है। यूजुअली ये इन्फेक्ट करता है एंट्रम रीजन को, एंट्रम रीजन के बाद दिस इज ओरल डिस्ट्रीब्यूशन और इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एंट्रम टू बॉडी देन होल स्टमक। सो इनिशियल इन्वॉल्वमेंट इज इन द एंट्रल रीजन।
ना सिर्फ ये एच पायलोरी इन्फेक्शन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स करता है, बट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एसोसिएशंस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, जिनमें से कुछ वेल डिफाइंड हैं, लाइक क्रॉनिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रिफ्रैक्टरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इनके लिए एविडेंस अच्छा है, और जिनमें कंट्रोवर्शियल या लेक ऑफ एविडेंस है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट्स और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, नेफेल्ड एंड CNS प्रॉब्लम। इनके लिए लेवल ऑफ एविडेंस या डेटा जो है वो कम है एसोसिएशंस के लिए। कैसे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं और कब जो है टेस्टिंग करनी चाहिए, क्या हर पेशेंट की टेस्टिंग करनी चाहिए? आंसर इज कि आपने टेस्टिंग तब ही करनी है जब आप ये प्लान करें कि हमें अगर टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसको हमने ट्रीट करना है। अगर किसी भी वजह से उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते तो फिर गाइडलाइंस की रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उसको टेस्ट करें। टेस्ट तब करें जब आप उसको ट्रीट करने का प्लान रखते हो। इंडिकेशंस क्या हैं टेस्टिंग के? जो स्टैंडर्ड इंडिकेशंस है, एक्टिव पेप्टिक अल्सर डिजीज हो, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल, या पास्ट हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज हो मगर उसने एच पायलोरी इराडिकेशन ट्रीटमेंट ना ली हो, गैस्ट्रिक माल्ट लिम्फोमा, और फॉलोइंग एंडोस्कोपी रिसेक्शन ऑफ अर्ली गैस्ट्रिक। ये 4 ग्रुप्स हैं जिनमें स्टैंडर्ड इंडिकेशंस हैं फॉर टेस्टिंग अगेंस्ट एच पायलोरी इन्फेक्शन। कंट्रोवर्शियल इंडिकेशंस में जिनमें डेटा मिक्स है, अनइन्वेस्टिगेटेड डिस्पेप्सिया in patients less than 60 years without alarm features। alarm features क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। prior to chronic non-steroidal anti-inflammatory drugs usage or low dose aspirin usage, unexplained iron deficiency anemia, adults with immune thrombocytopenic purpura, all asymptomatic individuals with a family history of gastric cancer, in patients with lymphocytic gastritis, hyperplastic polyps and hyperemesis gravidarum। इनमें डेटा कंट्रोवर्शियल है। कौन से अलार्म फीचर्स हैं डिस्पेप्सिया में जिनके हमें गौर करना है? these are the unintentional weight loss, dysphagia, odynophagia, unexplained iron deficiency anemia, persistent vomiting, palpable mass or lymphadenopathy, family history of अपर GI कैंसर। टेस्ट कौन से करने? ये टेस्ट 2 ग्रुप्स में है, एक जिनमें एंडोस्कोपी की जरूरत नहीं है, नॉन एंडोस्कोपिक और नॉन इन्वेसिव, और दूसरे टेस्ट जो एंडोस्कोपी की जाती है और एंडोस्कोपी के दौरान या उनके थ्रू हम ये टेस्ट करते हैं। नॉन इन्वेसिव में सीरोलॉजी, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, स्टूल एंटीजन टेस्ट, और एंडोस्कोपिक में हिस्टोलॉजी, रैपिड यूरियस टेस्ट, बैक्टीरियल कल्चर एंड सेंसिटिविटी, PSR। जो नॉन इन्वेसिव टेस्ट में सीरोलॉजी वो रिकमेंडेड नहीं है, स्पेशली के लो प्रिवेलेंस एरिया में, एक्सेप्ट के जहां अपर GI ब्लीड हो और जो है बायोप्सी या दूसरे टेस्ट ना हो सकते हो और स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि एच पायलोरी इन्फेक्शन की वजह से ये है, उनमें इसकी थोड़ी यूटिलिटी है। यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो है यूरिया लेवल्ड 13C इंजेस्ट की जाती है, उसके बाद वो एंजाइम जो यूरियज एंजाइम है बैक्टीरिया में, दैट causes breakdown of urea liberating ammonia, that carbon labeled carbon dioxide that exhalation में जो है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन प्रोसेस वो बाहर मेजर किया जाता है। स्टूल एंटीजन टेस्ट मल्टीपल एंटीजन से बैक्टीरिया में जो हम स्टूल में डिटेक्ट करते हैं। यूरिया ब्रेथ टेस्ट और स्टूल एंटीजेनिक डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन के लिए भी यूज होते हैं,
और पोस्ट इराडिकेशन कंफर्म करने के लिए कि इराडिकेशन हो गई या नहीं हुई, उसमें भी ये यूज हो जाते हैं। मोर और लेस उनकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी जो है वो 90 to 95% जो है कलेक्टिवली जनरली इनकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है। एंडोस्कोपी टेस्ट में हम जो है एक तो बायोप्सी लेते हैं, उनकी हिस्टोलॉजी करते हैं, और ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है हम वो जो बायोप्सी है उस बायोप्सी से हम बायोप्सी यूरिएज टेस्ट भी करते हैं, जिसमें जो बायोप्सी सैंपल है उसको एक मीडियम पे एक किट पे रखा जाता है जहाँ पे यूरिया है, और उसको फिर एक रिएजेंट पीएच रिएजेंट में डाला जाता है, फिर उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। दैट मे टेक 1 hour, that may take to more than that. So rapid urease test में less time लगता है as compared to दूसरे टेस्ट हैं किट्स हैं जिनमें ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और बैक्टीरियल कल्चर एंड सेंसिटिविटी गोल्ड स्टैंडर्ड है, और बिफोर आइडियली तो बिफोर एंटीबायोटिक ये करना चाहिए, मगर हमारे पास इसकी फैसिलिटी कम है और इसकी जो है इनको कैरी करना इनका मीडियम इट टेक्स इट्स कम्बर्स एंटीबायोटिक फेल हो जाए, एज वेल एज इसकी जो स्पेसिफिसिटी है कल्चर सेंसिटिविटी की वो 100% है। पीसीआर भी जो है वो यूज किया जा सकता है इन persistent infections में, that also has the high sensitivity and specificity as well. कौन सा टेस्ट कब करना चाहिए उसके लिए हम ये एल्गोरिदम देख रहे हैं। इस एल्गोरिदम में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि आया पेशेंट को अपर जिया एंडोस्कोपी की जरूरत है या नहीं है। अगर पेशेंट को अपर जिया एंडोस्कोपी की जरूरत है और वो तब हो सकती है जब उस पेशेंट को अलार्म फीचर्स हो। अगर अलार्म फीचर्स हैं और अपर जिया एंडोस्कोपी की जरूरत है तो आप उसके बायोप्सी लें और रैपिड यूरिएज टेस्ट भी कर सकते हैं और हिस्टोलॉजी भी कर सकते हैं। बायोप्सी अगर एच पाइलोरी प्रेजेंट आ जाता है उस बायोप्सीज पे तो डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो जाती है। अलार्म फीचर्स हैं और बायोप्सी पे एच पाइलोरी अब प्रेजेंट नहीं है, डिटेक्शन नहीं है, देन यू कैन गो फॉर यूरिया ब्रेथ टेस्ट और स्टूल एंटीजन टेस्ट। If it is positive, then diagnosis is established. If it is negative, then no additional workup is needed. अगर पेशेंट को अपर जिया एंडोस्कोपी की जरूरत नहीं है, then one can go for urea breath test or stool antigen test. और अगर स्टूल एंटीजन टेस्ट या यूरिया ब्रेथ टेस्ट ये टेस्ट पॉजिटिव है, डायग्नोसिस एस्टेब्लिश्ड। अगर नेगेटिव है तो रूल आउट करें कि रिसेंट पीपीआई बिस्मथ एंटीबायोटिक यूजेज है या नहीं है। अगर यूजेज है तो आप राउंड अबाउट 2 to 4 वीक्स के बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर रिपीट में टेस्ट पॉजिटिव है, डायग्नोसिस एस्टेब्लिश्ड। अगर रिपीट में टेस्ट नेगेटिव है तो इट्स नो एडिशनल वर्कअप इज रिक्वायर्ड। अगर ये यूजेज पीपीआई बिस्मथ एंटीबायोटिक्स की नहीं है तो नो एडिशनल वर्कअप इज नीडेड। सो अपर जिया एंडोस्कोपी की इंडिकेशन है या नहीं है, दिस इज प्राइमरी टूल के कौन सा टेस्ट करना चाहिए पेशेंट में। कंफर्मेशन ऑफ इराडिकेशन आफ्टर ट्रीटमेंट में कौन से टेस्ट करने चाहिए। ऑल पेशेंट्स ट्रीटेड फॉर एच पाइलोरी इन्फेक्शन, इन सब में जो है कंफर्मेशन ऑफ इराडिकेशन करना चाहिए। टेस्ट कम से कम 4 वीक्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एंटीबायोटिक्स करना चाहिए। चॉइस ऑफ टेस्ट अगेन डिपेंड करता है कि आपके अपर जिया एंडोस्कोपी की दोबारा जरूरत है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अल्सर हीलिंग के लिए आप देखना चाहें और लोकल अवेलेबिलिटी, उसके लिए हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट, स्टूल एंटीजन एसे और एंडोस्कोपी टेस्टिंग है। Biopsy and culture should be performed
culture and sensitivity and biopsy should be performed in patients with persistent H. pylori infection after 2 courses of antibiotic as discussed earlier. So indications kya hai treatment ki? All patients with evidence of active H. pylori infection, they need treatment. Or treatment regimes में at least 2 antibiotics, 1 PPI must है. Duration 10 to 14 days, but अगर आप 10 to 14 days उसके लिए है जहां इनिशियल ट्रीटमेंट है, मगर अगर सैल्वेज थेरेपी है तो ट्रीटमेंट 14 डेज है. इनिशियल ट्रीटमेंट रिजीम्स में भी मल्टीपल गाइडलाइंस का यही है कि बेटर टू गो फॉर 14 days. Before initiating treatment, counseling of patient regarding compliance, side effects, very necessary. उसको एक्सप्लेन करना कि इसकी जो है डोज मिस करने से कम एंटी ट्रीटमेंट ड्यूरेशन से उनकी रेजिस्टेंस डेवलप होती है, और लोकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैटर्न पता होना चाहिए. Previous exposure and allergies to specific antibiotics, cost and ease of administration जो है ये माइंड में रखने चाहिए. चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक, इनिशियल एंटीबायोटिक के लिए कौन से फैक्टर्स जहन में रखने चाहिए? नंबर 1 इज मैक्रोलाइड रेजिस्टेंस के रिस्क फैक्टर्स हैं या नहीं है, पेनिसिलिन एलर्जी है या नहीं है. जो मैक्रोलाइड रिस्क रेजिस्टेंस के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं दैट आर प्रायर एक्सपोजर टू मैक्रोलाइड फॉर एनी रीजन, high local clarithromycin resistant rate 15% or more than that, eradication rate with clarithromycin triple therapy 85% or less than that. These are the risk factors for macrolide resistance. अगर हम पाकिस्तान की डेटा देखें तो 2021 में एक स्टडी हुई है जिनमें इन्होंने कहा है कि ओवरऑल प्राइमरी रेजिस्टेंस वाज 39%, और एक जो है दूसरी स्टडी इन 2012 में हुई है, these are the 37% clarithromycin resistance and gastric biopsies tested in Karachi. So high resistance rate हमारे रीजन में भी है. इनिशियल एंटीबायोटिक regimes कौन से होने चाहिए? नंबर 1 is the bismuth quadruple therapy, second is the clarithromycin based therapy, and other is the standard or vonoprazan triple therapy. बिस्मिथ क्वाड्रुपल थेरेपी में बिस्मिथ सबसेलिसाइलेट या बिस्मिथ के दूसरे ग्रुप्स मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, पीपीआई और क्लेरिथ्रोमाइसिन बेस्ड थेरेपी को अगेन हम डिवाइड करते हैं. क्लेरिथ्रोमाइसिन ट्रिपल थेरेपी, क्लेरिथ्रोमाइसिन बेस्ड कॉन्कोमिटेंट, ये सॉरी क्वाड्रुपल गलत लिख के गया है मुझसे, और ये क्लेरिथ्रोमाइसिन बेस्ड कॉन्कोमिटेंट है, क्लेरिथ्रोमाइसिन बेस्ड सीक्वेंशियल है और क्लेरिथ्रोमाइसिन बेस्ड हाइब्रिड है. ट्रिपल में एज यू नो पीपीआई, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन आर एलर्जिक टू एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल. कॉन्कोमिटेंट थेरेपी में क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, एंड सीक्वेंशियल में पीपीआई, एमोक्सी 5 days followed by PPI, clarithromycin 5 days. Hybrid therapy में PPI plus amoxicillin 7 days, PPI, amoxicillin, clarithromycin, metronidazole for 7 days. Vonoprazan therapy में PPI या vonoprazan में पोटेशियम कम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर जो है ये vonoprazan प्लस amoxicillin प्लस clarithromycin और metronidazole. जापानीज गाइडलाइंस में जो है दे यूज इट एज इनिशियल एंटीबायोटिक थेरेपी. लीवोफ्लॉक्सासिन थेरेपी में ट्रिपल थेरेपी है, क्वाड्रुपल थेरेपी और सीक्वेंशियल थेरेपी है. ट्रिपल थेरेपी में लीवो प्लस एमोक्सी प्लस पीपीआई, लीवो ओमिप्राजोल एंड नाइट्रोजोक्सानाइड प्लस डॉक्सीसाइक्लिन नोन एज लोड for 7 to 10 days, and sequential therapy में amoxi plus PPI for 7 days followed by levo plus amoxi, metronidazole, PPI for 7 to
5 to 7 days. ट्रीटमेंट फेल्यूर है या नहीं है? आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 20% रेट ऑफ इनिशियल रिजीम जो है वो फेल्यूर रेट है, उसके लिए सॉल्वेज थेरेपी है। कौन से फैक्टर्स हैं? पुअर कंप्लायंस है, जैसे पहले अर्ज किया कि काउंसलिंग पेशेंट की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कंप्लायंस बेस्ट हो। एच पायलोरी रेजिस्टेंस नेचुरल या अक्वायर्ड, जैसे अक्वायर्ड जो है क्लेरिथ्रोमाइसिन लीवोफ्लॉक्सासिन की तरफ है, एमोक्सिसिलिन की तरफ जो है वो लिटिल रेजिस्टेंस है। और इनएडिक्वेट एसिड सेपरेशन, तभी जो है हाई पोटेंट जो है पीपीआई यूज करने चाहिए, हाई डोज यूज करने चाहिए, जैसे प्रॉपर एसिड सेपरेशन हो to avoid treatment failure. Resistance rate for amoxi, tetracycline, and rifampicin are low, less than 5%. So these are used for refractory H. pylori infection. Salvage therapy for persistent H. pylori infection के लिए choice of antibiotic के लिए जरूरी है कि पहले कौन सी antibiotic regime use की है और कौन यूज ऑफ कौन से एंटीबायोटिक्स इनिशियल रिजीम क्या थी और कौन से एंटीबायोटिक्स थे और रिलेवेंट एंटीबायोटिक की एलर्जी है या नहीं है। अगर 2 प्रायर ट्रीटमेंट रिजीम्स फेल हैं तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग करें और एंटीबायोटिक्स इंक्लूडेड इन इनिशियल रिजीम शुड जनरली बी अवॉइडेड और एमोक्सिसिलिन कैन बी रीयूज्ड एज रेजिस्टेंस रेयरली डेवलप्स। High dose PPI, double standard dose, more potent PPIs like esomeprazole, rabeprazole, या potassium competitive acid blockers, इनको भी high dose standard dose potent PPIs या PCAPs जो है इनको यूज किया जा सकता है for in salvage therapy. कौन से रिजीम से salvage? One is bismuth quadruple therapy, जिसमें PPI, bismuth, tetracycline और metronidazole, levofloxacin triple therapy, PPI, levofloxacin and amoxicillin, clarithromycin quadruple therapy, PPI, clarithromycin, bismuth and tetracycline, rifabutin triple therapy, PPI, rifabutin and amoxicillin, high dose dual therapy जिसमें PPI, high dose and amoxicillin. So these regimes are used for as a salvage therapy. क्या रोल है adjuvant therapy like statins, statins जो है और प्रोबायोटिक्स या वोनाप्राजोन की जापानीज में तो वो यूज कर रहे हैं, मगर प्रोबायोटिक्स जनरली यूज जो है उनका रोल इनका सारों का अनक्लियर है, मगर एंटीबायोटिक साइड इफेक्ट डिक्रीज करने के लिए प्रोबायोटिक्स बेनिफिशियल हो सकते हैं। स्टेटस जो है वो इनहिबिट कर सकते हैं एच पायलोरी ऑर्गेनिज्म को। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, अगर प्रेगनेंसी है डिफर द ट्रीटमेंट अंटिल आफ्टर डिलीवरी, अगर बहुत नेसेसरी है तो क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, probably metronidazole can be used after especially 14 weeks. Unsafe antibiotics for nursing infants, bismuth, metronidazole and levofloxacin, these should be avoided because H. pylori gastroduodenal diseases, complications, peptic ulcer disease, perforation and symptomatology, a lot of population is affected and development of malignancies. So keeping all these problems in mind, there is need of H. pylori vaccine to prevent this infection, but unluckily at present time it is still not available. So I stop here. Thank you so much for your kind listening. G, mic over to you. Thank you.
Thank you very much, Dr. Ali, for a wonderful presentation, and I am really grateful for you for taking out time for this session. We have Dr. Ali Hyder here, and he's a wonderful person. पूरा सिंध इन्होंने संभाला हुआ है, कराची के बाद से लेके मेरे ख्याल में पंजाब तक, और he's a very dynamic and is also very closely working with us on ECHO and this Pakistan Society of Hepatology. Any questions? एक क्वेश्चन चैट में था कि क्या PCAP और PPI इकट्ठे दिए जा सकते हैं? I responded कि आप either you use for a PCAP or PPI. Ali, do you आपका कोई एक्सपीरियंस? PCAP तो जरा थोड़े से नए हैं, कोई इसके बारे में कोई कमेंट देना चाहेंगे between PCAP and PPI? जी सर, थैंक यू। बेसिकली इकट्ठे यूज करने का तो कोई आइडिया एट प्रेजेंट नहीं है, एज फार एज आई नो, कि आप PPI भी दें और PCAP भी दें, इकट्ठे यूज करने का एट प्रेजेंट तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि PCAP जो है उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन वेरी रैपिड है विथ फर्स्ट डोज। पहले डोज से ही उनका जो है ना एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट जो है वो वेरी पोटेंट है। दैट्स व्हाई के पोटेंट एसिड सेपरेशन will lead to the eradication of H. pylori with the more effective antibiotic effect on H. pylori infection. So that's why इन्होंने जो है more पोटेंट एसिड सेपरेशन ड्रग्स जो है उनकी तरफ ये गए हैं, और अदरवाइज इनका इकट्ठे यूज का कोई नहीं है। एज फार एज माय एक्सपीरियंस के मैंने ऐसे ट्रायल नहीं किए कि इनमें से कौन सा बेहतर है, मगर जो स्टडीज हैं उनमें से जापानीज तो है इनको फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड के जैसे हमने कहा कि एक फैक्टर जो है फेल्यूर रेट का इनएडिक्वेट एसिड सेपरेशन भी है। तो इसी PCAP की वजह से एडिक्वेट एसिड सेपरेशन जो है वो पॉसिबल हो सका है, इस वजह से इसको प्रेफरेंस दी जा रही है इन दी जापानीज एज वेल। जी सर। जी, any other question from the audience? आपके पास raise hand की option है, you can unmute yourself and ask the question. एक क्वेश्चन आया था कि H. pylori वैक्सीन अवेलेबल है पाकिस्तान में या नहीं। H. pylori वैक्सीन एट प्रेजेंट तो एज फार एज आई नो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल नहीं है। चाइनीज ने इसके ऊपर काम किया था और वो भी जो है ना आगे काम नहीं बढ़ सका, कि उनकी अप्रूवल वगैरह नहीं हुई, क्योंकि मुख्तलिफ H. pylori की जो एंटीजेंस वगैरह हैं जैसे यूरिएज वगैरह है उसी के ऊपर काम हुआ है, मगर एट प्रेजेंट जो है वो ये अवेलेबिलिटी नहीं है इसकी। एक रेज्ड हैंड है उमर ताहिर की तरफ से। आई डोंट नो उमर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। इसमें मैं एक थोड़ा ऐड करना चाहूंगा सर, टाइम है हमारे पास तो। H. pylori इन्फेक्शन इन चिल्ड्रेन उसको मैंने अभी जो है प्रेजेंटेशन में नहीं रखा, थोड़ी उनकी जो है डिफरेंसेस H. pylori इन्फेक्शन इन चिल्ड्रेन। एक तो चिल्ड्रेन के लिए ये है कि उनके लिए उसकी डायग्नोसिस के लिए टेस्टिंग तब ही करें जब जो है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो, लाइक परसिस्टेंट वोमिटिंग हो, वेट लॉस हो, ऑकल्ट ब्लीडिंग पॉजिटिव हो, या जो है उनको जो है ना गैस्ट्रोड्यूडेनल डिजीज जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, तो अलार्म फीचर्स वगैरह हैं, तब जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है उसमें H. pylori इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करें।
जैसे अडल्ट में डिस्पेप्सिया वगैरह के लिए जो कंट्रोवर्शियल इंडिकेशंस हैं उसमें हम टेस्ट करते हैं, तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होनी चाहिए टेस्टिंग के लिए और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। जैसे क्योंकि उसमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में एंडोस्कोपी मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि अलार्म फीचर्स हैं तभी आप उसी में टेस्ट करेंगे। तो एंडोस्कोपी बेस्ट जो टेस्ट है वो हो, उसके बाद अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो जो अल्गोरिदम एक अप टू डेट में है, उस अल्गोरिदम में ये अगर उसमें पॉजिटिव आता है देन यू गो फॉर नेक्स्ट टेस्ट लाइक जो है स्टूल एंटीजन टेस्ट और रैपिड यूरियस टेस्ट, उसमें भी पॉजिटिव आता है देन यू गो फॉर द ट्रीटमेंट इन दैट पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। सो ये एक है डिफरेंस अडल्ट और पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए। जी सर। जी, इसमें एक और चीज जो है वो डॉक्टर अली ने मेंशन की थी, स्पेशली टेस्ट एंड ट्रीट एच पाइलोरी में। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो जब आप टेस्ट करें, स्पेशली हम स्टूल एच पाइलोरी एंटीजन तो काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि अब काफी वाइडली अवेलेबल है पाकिस्तान में। यूरिया ब्रेस्ट टेस्ट अभी कुछ सेंटर्स में हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा सेंटर्स में नहीं है। और यही चीज एंडोस्कोपी के लिए भी ट्रू है कि आप लोग इंश्योर करें कि पेशेंट इज ऑफ पीपीआई फॉर 1 वीक। और ये मेरा कह देना बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लोग यूजुअली पीपीआई ले रहे होते हैं और बाज़ का पीपीआई इतना ज्यादा यूज या अब्यूज होता है पाकिस्तान के अंदर के वो मेडिकल स्टोर से ले रहे होते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि वो मेप्राजोल, एसोमेप्राजोल या कोई और इससे रिलेटेड इसी किस्म की कोई दवाई ले रहे होते हैं। तो जो टेस्ट की यील्ड है, सेंसिटिविटी है, वो काफी बढ़ जाती है अगर पेशेंट पीपीआई से ऑफ हो। खैर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि लोग पीपीआई लेते हुए भी उनके वी स्टिल आर एबल टू पिक एच पाइलोरी ऑन दिस टेस्ट। अली, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? जी सर, इसमें ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। थोड़ी प्री रिक्विजिट्स हैं कि आप टेस्टिंग कब करें। उसके लिए प्री रिक्विजिट्स यही हैं जैसे आपने फरमाया कि एंटीबायोटिक्स एटलीस्ट 4 वीक्स ऑफ होने चाहिए। पीपीआई जो है वो एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स जो है पेशेंट ऑफ होना चाहिए। और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो है उसके लिए 24-48 आवर्स का है कि वो ऑफ होना चाहिए। इससे अगर ये पेशेंट ऑफ दी एंटीबायोटिक्स, ऑफ दी पीपीआई, ऑफ दी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है देन इनकी यील्ड जो है वो बिल्कुल सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। एंटीबायोटिक्स और पीपीआई की वजह से, यूज की वजह से जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है ऑर्गेनिजम्स से वो सप्रेस भी हो जाते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इन दी स्टमक अनइवन हो जाती है। तो अगर आप बायोप्सी भी लें तो उसी से यील्ड उसकी बहुत कम हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक पेशेंट है उसको इसमें थोड़ा ऐड ये करेंगे कि अगर एक पेशेंट है पर जीआई ब्लीड का है, उसको पीपीआई देना बहुत ज़रूरी है। और एच पाइलोरी की वजह से हमें लग रहा है कि उसका जो गैस्ट्रोड्यूडेनल डिजीज है वो एच पाइलोरी की वजह से, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये इमरजेंसी नहीं है कि आप उसी वक्त एच पाइलोरी के लिए टेस्ट करें। आप जो प्राइमरी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करें, पेशेंट को स्टेबल करें, अल्सर को हील होने दें, उसके 4 वीक्स 6 वीक्स के बाद आप स्टॉप करके उसके बाद आप टेस्ट करें और उस टेस्टिंग में जो है एच पाइलोरी जाहिर होता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो देन यू गो फॉर ट्रीटमेंट। जी सर। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन एक सर। और जी प्लीज गो अहेड। ये क्वेश्चन प्रेगनेंसी के बारे में है कि अबाउट पी कैप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके ऊपर कोई डेटा बहुत ज्यादा नहीं है। इसकी अभी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि बेस्ट अवॉइड। और सिमिलरली इसको
लैक्टेटिंग मदर्स में भी अभी तक इसको उस तरह से क्लियरेंस नहीं है. I think with the passage of time we will be learning more. जी डॉक्टर अली हैदर, मेरे पास तो यही इंफॉर्मेशन है प्रेगनेंसी और पी कैप में. आई डोंट नो इफ यू हैव एनीथिंग मोर जी टू सर, ऐड ऑन यही इट. है, मेरे पास भी यही इंफॉर्मेशन है कि अभी हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल नहीं है. और सबसे पहली बात तो यही है कि ट्राई टू अवॉइड टू ट्रीट एच पायलोरी इन प्रेगनेंसी, नंबर 1. नंबर 2, अगर ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़ती है तो आफ्टर 14 वीक्स. और पी कैप की के यूज इन प्रेगनेंसी एट प्रेजेंट कांट से मोर. जी सर. डॉक्टर अली, मैं आई जस्ट वांट टू नो, आपकी इस साइट पे जो प्रैक्टिस है फॉर अ पेशेंट विद डिस्पेप्टिक सिम्टम्स हु हैज स्टूल एच पाइलोरी एंटीजन पॉजिटिव, आप लोगों का प्रेफर्ड रेजिमेन कौन सा है? व्हाट यूज इन योर पार्ट, पाकिस्तान में आप लाड़काना वगैरह में क्या यूज करते हैं? जी सर, जो मेजॉरिटी में देखने में आ रहा है कि जो जनरली के शायद ज्यादा यूज की वजह से एक जो है ना, आप कहें कि हैबिट सी बन गई है कि जब भी आप एंटी एच पायलोरी रिजीम लिखते हैं तो क्लेरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन लिखा जाता है पेपर के ऊपर, जो नजर आता है मोस्टली जो यहाँ लोकल नजर आता है. बट हैविंग सेड दैट कि मेरी अपनी प्रेफरेंस जो है वो बिस्मिथ क्वाड्रपल थेरापी पे है. अदरवाइज जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल कराची वगैरह से जो पेशेंट्स वगैरह हमारे पेशेंट उधर जाते हैं फिर वापस आते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी लीवोफ्लक्सेसिन भी मैंने यूज़ होते हुए जो है ना देखा है कि काफ़ी पेशेंट्स जो है वो कंसल्टेंट्स यूज़ करते हैं लीवोफ्लक्सेसिन बेस्ड जो है ट्रीटमेंट. और जी, हम लोग मोस्टली यहाँ पे जी प्लीज, हम लोग मोस्टली यहाँ पे 2 weeks ट्रीटमेंट विद पीपीआई, लीवोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे एंड अमोक्सिसिलिन 1 ग्राम बीडी देते हैं. और अगर उसके बाद प्रॉब्लम हो तो क्वाड्रुपल में बिस्मथ विद मेट्रोनाइडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन एंड ऑफ कोर्स पीपीआई. तो ये क्वाड्रुपल यूज होता है ज्यादा. जी. क्लैरिसिड हम यूज नहीं करते, क्लैरिथ्रोमाइसिन बेस्ड हम यूज नहीं कर रहे बिकॉज़ रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है. जी सही है. जी, if any other question, we have time, or if there is no question, so then I will go to our coordinator, Ms. Kiran के पास के. Okay, Ali, thank you very much. मैं यहाँ पे सारे audience को I would, on behalf of Pakistan Society of Hepatology, I would like to invite you to for our upcoming meeting 23rd, 24th, 25th September, जो हमारी annual congress है in Lahore, Pearl Continental. तो please हम आपके साथ share भी करेंगे जो उसकी posters हैं. कोई भी चीज हो तो you can always contact us. Parsa Echo is working very closely with Pakistan Society of Hepatology, तो we can facilitate you. और thank you very much once again, Ali, for your time and for a wonderful talk. बहुत ही अच्छा लगा और बहुत मजा आया. So we will be bothering you again and again. Thank you so much, sir. All of you. आपकी बहुत मेहरबानी, आपके टीम की बहुत मेहरबानी और ऑडियंस की बहुत मेहरबानी, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कुलीग्स हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. जी किरण, आप प्लीज. थैंक यू डॉक्टर अली, डॉक्टर असद. इसके अलावा ये है कि हम केस अगर हमें पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट करना चाहें और हमें देना चाहें तो वी हैव अ फॉर्मेट, वो हम आपको दे सकते हैं. आप अपना केस भी अपकमिंग सेशंस में अगर लेना चाहते हैं तो हमें बताइएगा. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है प्रेजेंटेशन की तो हमारी तरफ से कोई ना कोई डॉक्टर प्रेजेंट कर देगा. और हम वी आर ग्रेटफुल टू द पार्टिसिपेंट्स और हमारे एक्सपर्ट्स के.
इसके अलावा गेट्स फार्मा के फॉर द अनरिस्ट्रिक्टेड एजुकेशनल ग्रांट, और स्पेशल थैंक्स टू खालिद महमूद साहब and of course our Parsa Eco team, and we hope this collaboration with Rising Foundation will produce more informative sessions for the future. I will sign off for today. Allah Hafiz. Uzair, you can call off the meeting. Sure, ma'am. Till next time, Allah Hafiz to all of you.